हेलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं YouTube के इस चैनल से। आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टडी मटेरियल सो दैट यू कैन डू योर स्टडी वेरी वेल अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स। सो दैट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट the book of plus 2 standard, the second book of plus 2 standard named Vistas lesson first, the third level Jack Finney. So this is all about the third level, and today which the story we are going to discuss about that the main character of that story is Charlie, and that person as the story, according to the story, as we think he remained in the world of imagination. So this is all about the imagination. So now I am going to tell you, first of all, I have written here for giving you the comfortable or at ease level. So here it is written, the third three step of the lesson in the form of story map. I have written or draw the story map through which you can take very much help. First of all, main characters. The first character in this story of the third level book Vistas plus 2 standard, author named Jack Finney, that is Charlie. Second character, Loisa, his wife, means Charlie's wife. Third one, Sam Wiener, his psychiatrist friend. And now the second step, that is setting, where it is set. The story moves simultaneously 1950 and 1890s. Next one step, that is the third step. So here it is fourth step. Third step, background. Charlie believes that he has been on the third level of the Grand Central Station in New York, as opposed to the generally known two, but he imagined third level also at the Grand Central Station. The other people who calls it a figment of imagination of Charlie. Next step, that is the theme, the main theme of overall the lesson, the third level, that is the story deals with the themes of mystery, and another one curiosity, another one imagination, and the last one time travel, etc. Now we'll come to know the translation through the reading explained into Hindi. Everybody knew that, हर कोई जानता था, there were only 2 levels in the subway of the Grand Central Station. Grand Central Station के उपमार्ग पर केवल 2 स्तर थे न्यूयॉर्क में. But Charlie, who was 31 years old, Charlie 31 साल की उम्र थी, that he had been on the third level, वो तीसरे लेवल पर था. When he talked of this to a psychiatrist friend of his, जब उसने इसके बारे में अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया, he said, उसने कहा that it was a waking dream with fulfillment, आपकी fulfillment के साथ वो एक जागता हुआ सपना था. The friend said, फ्रेंड ने कहा that the modern world was full of insecurity, कि ये आधुनिक संसार जो है वो असुरक्षा, फियर, डर, वॉर, युद्ध, एंड वरी चिंता, ये सब चीजों से भरा हुआ था. एंड चार्ली वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम इट बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी. चार्ली जो है वो इन चीजों से बच निकलना चाहता था क्योंकि वो उदास था. ऑल फ्रेंड्स ऑफ चार्ली ऑल्सो एग्रीड टू दिस, सभी चार्ली के मित्र जो थे वो इससे सहमत थे. दे वुड से, वो कहते, दैट हिज स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटीज वर ऑल्सो अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि जो वो स्टैम्प कलेक्टिंग का उसको एक हॉबी था, उसकी जो गतिविधि थी उसके लिए वो क्या था, वो ऑल्सो टेम्परेरी रिफ्यूज, ये उसके लिए एक अस्थायी आश्रय था वास्तविकता के बजाय. बट चार्ली वुड नॉट एक्सेप्ट सच एन एक्सप्लेनेशन, चार्ली जो है वो इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन को स्वीकार नहीं करता. इट वॉज हिज ग्रैंडफादर, ये उसके दादाजी था, हु हैड स्टार्टेड दिस स्टैम्प कलेक्शन, उसके दादाजी ने जो टिकटें इकट्ठी करना होता है वो शुरू किया था. एंड ही डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
उसको वास्तविकता से किसी और रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी। थिंग्स वर पीसफुल इन हिज डे एंड ही नीडेड नो एस्केप। थिंग्स वर पीसफुल इन हिज डे, और दिन के दरमियान उसके लिए हर एक चीज शांत थी और उसको किसी चीज से बच निकलने की जरूरत नहीं थी। वन नाइट, एक रात्रि, चार्ली वर्क लेट इन हिज ऑफिस। चार्ली देर रात तक ऑफिस में काम किया। ही वॉज इन हरी टू गेट होम। उसे घर जाने की जल्दी थी। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में था उसके उपमार्ग से जाने का फैसला लिया, बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस। बस की बजाय ये बहुत ज्यादा तेज जाने वाला मार्ग था। ही वॉज wearing a tan gabardine सूट एंड ए स्ट्रो हैट विद ए फैंसी बैंड। एक बहुत ही फैंसी बैंड के साथ उसने एक गैबरडाइन सूट और एक स्ट्रो हैट पहना हुआ था। When he entered the station, जब उसने स्टेशन में एंटर किया, he passed a dozen men who looked just like him। दर्जनों लोग उसके पास से गुजरे जो उसकी तरह दिखाई देते थे। एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग, वो किसी चीज से बच निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोइसा हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी लुइसा के लिए घर जा रहा था। चार्ली वॉक्ड डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। चार्ली ने पहले स्तर के जो सीढ़ियां थी उस पर चलना आरंभ किया। देन ही वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स टू द सेकंड लेवल फ्रॉम वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव, जहां पर उपनगरीय गाड़ियां चलती थी। फिर उसने दूसरे स्तर की सीढ़ियों के ऊपर से चला। बट व्हेन ही वाज हेडिंग फॉर द सबवे, जब वो उपमार्ग के हेडिंग शीर्ष की तरफ जा रहा था, ही गोट लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, कॉरिडोर से वो खो गया। इट हैड हैपेंड विद हिम बिफोर आल्सो, इसके साथ पहले भी ऐसा हुआ था। वंस ही गोट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी, टनल मींस सुरंग से वो गया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आया। अनदर टाइम, दूसरे समय, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और दूसरे वो एक ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर आया। दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक दूर थी। ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया, दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एक वृक्ष की तरह बड़ा होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और जड़ की तरह कुछ एक सीढ़ियां थी, कुछ नए कॉरिडोर थे, वो उसे धकेल रहे थे। दिस टाइम ऑल्सो, इस बार भी चार्ली जानता था, ही हैड एंटर्ड अ रॉन्ग कॉरिडोर, कि वो एक गलत कॉरिडोर में प्रवेश कर गया था। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, उसने चलना जारी रखा। द कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट, और जो कॉरिडोर था उसका लेफ्ट की तरफ से एक कॉर्नर से वो गया। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और एक तिरछा नीचे की तरफ। ही कुड हियर द एम्प्टी साउंड ऑफ हिज ऑन स्टेप्स, वो उस रास्ते पर जहां चला गया वहां केवल अपने कदमों की आहट सुन सकता था। ही डिडंट पास एनीवन देयर, वहां से कोई भी नहीं निकला। देन ही हियर द साउंड्स ऑफ सम पीपल टॉकिंग, तब उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और एकदम तेजी के साथ वो लेफ्ट की तरफ जो सुरंग थी मुड़ी। ही वेंट डाउन ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम वो नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे स्तर पर पहुंच गया। चार्ली सॉ दैट एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट ऑन द 3rd लेवल। चार्ली ने क्या देखा कि 3rd लेवल पर हर एक चीज बहुत अलग थी। हियर द रूम्स वर स्मॉलर एंड देयर वर फीवर टिकट विंडोज, रूम छोटे छोटे थे और कुछ टिकट की खिड़कियां थी। ऑन द फ्लोर, और फर्श पर, देयर वर ब्रास स्पिटून्स, और वहां पर कुछ ब्रास पीतल के स्पिटून्स थे। द लाइट्स वर डिम, और लाइट जो थी वहां पर बहुत डिम थी, धुंधली थी। दे फ्लिकर्ड, और वो टिमटिमा रही थी, बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वो गैस लाइट्स की ज्वाला जो है उनसे निकल रही थी। एवरीबडी इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड द वे पीपल डिड इन द 1890s, और जिस 3rd लेवल पे स्टूडेंट वो गया तो वहां पर जो लोग उसे मिले उनका जो पहनावा था वो कुछ 1890 के लोगों जैसा था। मैन हैड बियर्ड्स, उन लोगों की दाढ़ी थी, साइड विस्कर्स और मूछें थी। एंड फैंसी माउचेस, विस्कर्स दाढ़ी थी, बियर्ड दाढ़ी, विस्कर्स और साइड की विस्कर थी। एंड फैंसी माउचेस, और बहुत बढ़िया मूछें। अ वेरी स्मॉल लोकोमोटिव वॉज सीन कमिंग इन, और वहां पर एक बहुत छोटी ही लोकोमोटिव आती हुई देखी जा सकती थी। देयर वॉज अ न्यूज बॉय, वहां एक समाचार देने वाला लड़का था। हु हैड कॉपीज ऑफ अ न्यूज़पेपर मींस हॉकर, जो न्यूज़पेपर की कॉपी लिए हुए था। द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड था। दैट हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, कई सालों से वो पब्लिश नहीं हुआ था। इट वाज अ जून 11,
1894 एडिशन, और ये जून 11 1894 का एक एडिशन था। चार्ली टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, चार्ली जो है टिकट विंडो की तरफ मुड़ा। ही सो देखा दैट फ्रॉम हियर, और यहां से ही कुड बाई टिकट्स फॉर एनीवेयर, कहीं के भी वो टिकट ले सकता था इन द यूनाइटेड स्टेट में। ही डिसाइडेड टू बुक 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, और उसने गेल्सबर्ग की 2 टिकट लेने का फैसला लिया। वेयर ही वांटेड टू गो विद हिज वाइफ, जहां वो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था। बट व्हेन द क्लर्क लुक्ड एट द बिल इन चार्लीज हैंड, जब चार्ली के हाथ में उसने बिल को देखा, ही सेड, उसने कहा, देयर इज नॉट मनी मिस्टर, यहाँ ये जो करेंसी है वो काम नहीं करती। द क्लर्क ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, और क्लर्क ने अपनी एक तरफ जो कैश ड्रॉयर था उसको देखा। देयर वर ओल्ड स्टाइल बिल्स इन इट, इसमें पुराने प्रकार की करेंसी थी। दे वर डिफरेंट लुकिंग, वो अलग ही दृष्टिकोण वाली। दे वर हाफ अगेन एज बिग एज द मनी चार्ली हैड विद हिम, They were half again as big as the money Charlie had with him, और चार्ली जितना वो आधे दोबारा जा सकता था अपने पैसे के साथ। द क्लर्क थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, और उसने ज्यादा से ज्यादा बोला, लेकिन उसने उसको पुलिस को बुलाने की धमकी दी। चार्ली एट वंस टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट, चार्ली तुरंत मुड़ गया और तेजी से चलने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, चार्ली ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, उसने बैंक से $300 जो थे वो निकलवाई। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने की करेंसी खरीदी है। टू पे प्रीमियम, उसे एक किस्त अदा करनी थी। हिज $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। हिज $300 बोट, और जो वो $300 खरीदे थे वो 200 जो ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी उससे $200 से कहीं ज्यादा कम थी। परंतु यद्यपि ही ट्राइड मैनी अ टाइम, उसने कई बार कोशिश की। ही कुड नेवर फाइंड द कॉरिडोर, उसे वो कॉरिडोर नहीं मिला। दैट लेड टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसे लेके गया था। हिज वाइफ बिकेम मच वरीड, उसकी माता को, उसकी पत्नी को, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता हुई। व्हेन ही टोल्ड हर ऑल दिस, जब उसने उसे ये सब कुछ बताया। She did not want him to look for the 3rd level anymore, और वो नहीं चाहते थे कि वो और ज्यादा उस तीसरे लेवल की खोज करे, उसको ढूंढे। एंड आफ्टर ए व्हाइल ही स्टॉप्ड, कुछ समय के बाद वह रुका। बट ही ऑफन टॉक्ड टू हिज फ्रेंड सैम वीनर अबाउट द ब्यूटी ऑफ गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग की सुंदरता के बारे में उसने अपने मित्र सैम वीनर को बताया। नाउ चार्ली गेव हिज अटेंशन टू स्टैम्प्स, चार्ली का ध्यान अपनी स्टैम्प्स की तरफ दिया। हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स, और वो पहले दिन से ही जो उसके दादाजी के संग्रह था। लेट अस नाउ व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, चलिए अब जानते हैं कि वो पहले दिन का क्या उसने कवर किया था। वो व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई मोहर स्टैम्प जो है इशू की गई थी स्टैम्प कलेक्टर्स, और वो जो टिकटें थी संग्रह करने वाला बाई सम, कुछ खरीदी। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप, उन्हें डाक के टिकटों में यूज किया। टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो उस पहले दिन की बिक्री से ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डे, और उसके ऊपर उस तारीख को प्रूव कर रही थी पोस्ट मार्क। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, वे कभी नहीं खोली गई। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और आपने सिर्फ उसमें एनवेलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर को जो है रखा। वन नाइट, एक रात्रि, चार्ली वाज लुकिंग अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, चार्ली जो है अपने फर्स्ट डे कवर को, ओल्डेस्ट सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहा था। देन ही फाउंड वन, उनमें से एक मिली। दैट हैड बीन मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, में उसने अपने दादाजी को जो है डाक द्वारा भेज दी थी। चार्ली डिड नॉट रिमेंबर हैविंग एवर सीन इट बिफोर, और चार्ली को याद नहीं कि उससे पहले कभी देखा था। द पोस्ट मार्क शोड जुलाई 1894, और पोस्ट मार्क जो तो डाक टिकट का जो एक निशान था वो 18 जुलाई 1894 को दिखा रहा था। पर द पेपर इनसाइड इट वाज नॉट ब्लैंक, अंदर जो पेपर था वो खाली नहीं था। इट हैड अ नोट फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर, और इसमें सैम वीनर जो उसका मित्र था, एक साइकेट्रिस्ट था, उसके द्वारा एक नोट लिखा हुआ था। इट रीड, इसमें लिखा गया 941 विलैंड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, you were right and it's true. I found the 3rd level. I have been here 2 weeks and right now down the street someone is playing a piano and they are all singing. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the 3rd level. It's worth it. Believe me, Sam. So it was the letter written by it had a note from his secretary written by his friend. Later, Charlie found from the stamp and coin store that Sam had bought $800. बाद में चार्ली ने ये पाया कि स्टैम्प और कॉइन को जो स्टोर किया था सैम ने $100 जो है $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो पुराने स्टाइल की करेंसी थी $800। विद दैट, उसके साथ चार्ली ने सोचा सैम कुड सेट अप अ लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस विच ही लाइक्ड सो मच,
उसे बहुत ज्यादा वो बिजनेस पसंद था, जो घास फूस चारा अनाज इसके बारे में। इन गेलबर्ग्स ऑफ 1894 के गेल्सबर्ग में ही कुड फाइंड नो स्कोप फॉर हिज ओल्ड बिजनेस बिकॉज ही वाज अ साइकेट्रिस्ट, और ही कुड फाइंड नो स्कोप, उसका कोई स्कोप नहीं था जो उसे मिला फॉर हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस के लिए, बिकॉज ही वाज अ he could find no scope for his old business because he was a psychiatrist। उसका कोई भी स्कोप नहीं था उसके बिजनेस का, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था। तो ये कहानी जो इमेजिनेशन के बारे में है, और वो किसके इमेजिनेशन के बारे में, चार्ली जो मेन कैरेक्टर्स है, और जो सैम का कैरेक्टर है वो भी उसके द्वारा एक क्रिएट किया गया कैरेक्टर है, दैट वाज नॉट अ कैरेक्टर इन रियलिटी। सो उम्मीद करता हूं आपको ये इमेजिनेशन जो थर्ड लेवल है, इवन इसमें 2 ही लेवल की बच्चे बात हुई है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे न्यूयॉर्क में, आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये इमेजिनेशन है चार्ली की कि उसको थर्ड लेवल है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जो कल्पनाओं की दुनिया है उससे कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई कल्पना नहीं करना कि जिसके लिए हम कल्पनाओं की दुनिया में रह जाए। तो